Hello everyone, how are you guys doing? Okay, so the December cycle of UGC NET is over. Answer key has been released, but the result is yet to come, right? And the next exam hopefully will be conducted in June 2024, right? So I think now is the right time to start preparing for that exam for whichever subject you are preparing, but you have to start early. You have to be that early bird if you want to see success in this exam. Okay, with that note, let us start with the video. Okay, as some of you might be knowing, I teach women's studies for UGC NET and JRF, right? And this is the fourth time that I'll be teaching this course. I have taught this course three times starting from November 2022. So students have given their February 23 exam with me, June 23 exam with me, and December 23 exam with me. And after getting some very good encouragement and good feedback from students, this is me offering this course for the fourth time, right? But before I begin to tell you about the features of this course, this is like always something about me. Just a second. Okay, so this is some information about me, as you guys should be aware of it, right? As responsible consumers in this country. Okay, so I did my BA History Honors from Punjab University, Chandigarh in 2019. Okay, and then immediately after that, I went on to do Masters in Modern History from JNU, New Delhi in 2021. Okay, and in 2022, I cleared JRF in Women's Studies. Okay, the exam that was held in September 2022, if I'm not wrong. Okay, and the result of which was announced on November 5th, 2022. I cleared JRF in Women's Studies in that cycle, and it was my first attempt only. Right, then in February last year, I got admission for PhD uh, at JNU at Center for Women's Studies. Okay, but I left that course due to some personal reasons, and now I'm teaching this course. Okay, so now we can look what all features this course holds for all of us. Right, so first of all, look at the fee. Okay, the fee is very minimal. Okay, for a course that is offering a comprehensive, a very holistic coverage of a subject that no one else is doing. Okay, women studies में आप सबको पता है कितना कम जो है गाइडेंस रहती है, कितना कम मटेरियल रहता है. गाइडेंस भी छोड़ दो, मटेरियल ही नहीं मिलता है आपको. अगर आप अमेजोन के ऊपर जाओगे, आपको एक दो किताब मिल जाएंगी जो कि बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो चुकी है. ठीक है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक मिलती है अमेजोन के ऊपर, और एक विमेन स्टडीज की एक दो बाकी बुक मिल जाती हैं. ठीक है, जिसके अंदर कंटेंट तो है लेकिन बहुत ज़्यादा आउटडेटेड कंटेंट है. लाइक जो 10 से 15 साल पहले जो एग्जाम होता था उसके हिसाब का कंटेंट आपको वहाँ पे मिल जाएगा. रेगुलर जो है उसके अंदर अपडेशन नहीं होती है. एंड अगर आप उन बुक्स को पढ़ करके एग्जाम देने जा रहे हो, यू विल बी एबल टू डू थोड़ा सा एवरेज टाइप आप जो है वहाँ पे परफॉर्म कर लोगे. लेकिन जो अगर आप ऑफ कोर्स आप नेट के लिए अगर आप जो है एम कर रहे हो, आप जेआरएफ के लिए एम कर रहे हो एक ऐसे सब्जेक्ट के अंदर जहाँ पे सीट्स ऑलरेडी बहुत कम है, राइट? कितनी ही सीट्स रहती हैं हर साल, 5 या 6 सीट्स रहती हैं जेआरएफ की वुमेन स्टडीज के अंदर. तो सीट्स बहुत कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और तीसरी चीज़ आपके पास कोई भी जैसे बोलते हैं वर्दी मटेरियल जो है वो अवेलेबल नहीं है, राइट? सो प्रॉब्लम्स बहुत हैं व्हेन इट कम्स टू वुमेन स्टडीज़ का जेआरएफ का एग्ज़ाम, राइट? और इसी चीज़ को सोचते हुए हम लोगों ने ये कोर्स जो था वो शुरू किया था. ठीक है, और हमें बच्चों से बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग जो है रिमार्क्स मिलते हैं. वन ऑफ आर स्टूडेंट्स क्लियर जेआरएफ, अनदर वन क्लियर नेट. ओके, और कंसीडरिंग कि जेआरएफ की कितनी कम सीट्स रहती हैं, तो आप देख सकते हो कि अगर एक दो बच्चे भी जो हमारे उससे जेआरएफ निकाल रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग. ठीक है, तो इसी वजह से जो है हम लोग ये कोर्स जो है वो बार बार लेकर के आते हैं, बिकॉज वी नो दैट इट हेल्प स्टूडेंट्स. और हेल्प भी ऐसे जगह पे कर रहा है जहाँ पे कोई और आपको हेल्प नहीं करेगा, जहाँ पे कोई और चैनल या कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि आपको इतना कंप्लीट और इतना होलिस्टिक कवरेज जो है वो इस सब्जेक्ट का दे दे. बाय होलिस्टिक आई मीन कि फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10. एज यू गाइज माइट बी नोइंग कि वुमेन स्टडीज में 10 यूनिट्स हैं सिलेबस के अंदर, तो हम लोग यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 10 के सारी यूनिट्स के अंदर जो है आपको एडुकेट मटेरियल जो है वो मिलता है. ठीक है, और सिर्फ एडुकेट मटेरियल की बात नहीं होती है, आपको जो है वहाँ पे
अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी जाती है, सो दैट कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनी रहे, आपको चीज़ों के रट्टे जो है वो नहीं मारने पड़े। ठीक है, और अगर आपको वो चीज़ देखनी है खुद से, तो यूट्यूब के ऊपर जो है मेरी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस हो, चाहे वो एक दो जो हमने वीडियोस जो है वो क्लास वाली वीडियोस हमने डाली हुई, जहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोग किस तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं वहाँ पे। सेकेंडली, मैं क्लास जो है वो ऐप के ऊपर नहीं लेती हूँ, ठीक है, मैं जूम के ऊपर क्लास लेती हूँ, बिकॉज ऐप के ऊपर जो डायरेक्ट इंटरेक्शन है वो पॉसिबल नहीं हो पाती, वहाँ पे आप कुछ कमेंट कर दोगे, ठीक है, और मैं जो है पैसिवली उस चीज़ का रिस्पॉन्स दे दूंगी। लेकिन जूम के ऊपर या फिर बाकी ऐसे प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे हम लोग फेस टू फेस इंटरेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपके डाउट्स हो गए, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई आपको वरी है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है एग्जाम को लेकर के, हम सारी चीज़ों के बारे में 1 to 1 वहाँ पे बात करते हैं। और ये चीज़ आप खुद जाकर के एक्सपीरियंस कर सकते हो इस चैनल के ऊपर बाकी विमेन स्टडीज़ की जो वीडियोस हैं वो देख करके। ठीक है, ओके, सो आपको इस कोर्स के अंदर क्या कुछ मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू विल गेट रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स। ठीक है, 2 साइकिल्स तक हमने जो थी लाइव क्लासेस करी थी, लेकिन उसके बाद रियलाइज किया कि सिर्फ डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स है, क्योंकि सिलेबस जो है मोर और लेस सेम ही है। ठीक है, तो हम लोग वो जो एक बार हमने वीडियोस रिकॉर्ड कर दी गई हैं वो हम वहाँ पे ऐप के ऊपर डाल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत पुराना कोई कंटेंट मिल रहा है, बिकॉज यू विल हैव लाइव क्लासेस टू। ठीक है, आपको वहाँ पे लाइव क्लासेस भी मिल रही हैं, चाहे वो आपके डाउट सेशंस के रिगार्डिंग हो, चाहे वो करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग हो, चाहे वो मॉक टेस्ट्स के एनालिसिस या उनको सॉल्व करने के रिगार्डिंग हो। तो ऐसा नहीं है कि भाई मतलब एक बार हमने वीडियोस फेंक दी और उसके बाद जो है कोई इसको फॉलो अप नहीं करेगा। हम लोग हर वीकली या बाई वीकली, जो कि बच्चों के डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है, जब भी बच्चे बोलते हैं कि इस टाइम पर डाउट सेशंस की या किसी लाइव क्लास की जरूरत है, तब मैं क्लास ले लेती हूँ। ठीक है, सो यू विल गेट रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर सारी यूनिट्स के फ्रॉम यूनिट 1 to 10 विद पीडीएफ मटेरियल, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, जिसका आप प्रिंट आउट ले सकते हो, और उसके साथ साथ में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। तो इसको बोलते हैं हॉलिस्टिक कवरेज। ठीक है, उसके बाद जो है PYQ की डिस्कशन होती है। ये आई थिंक हमारे कोर्स का वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स रहता है कि हम लोग क्वेश्चन पेपर को क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 100 तक जो है इन डेप्थ हम उसको एनालाइज करते हैं। हम उसके जो है ऑप्शंस देखते हैं कि कौन कौन से, मतलब जो राइट आंसर है वो तो है ही है, लेकिन जो बाकी 3 आंसर्स हैं जो कि उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग राइट नहीं थे, लेकिन अगले वाले साइकिल के अंदर, अगले वाले एग्जाम के अंदर जरूर रिपीट हो सकते हैं, हम उनको भी डिस्कस करते हैं। अगर आपको ये चीज देखनी है तो पिछले 3 साइकिल्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, ठीक है, फरवरी 2023 से लेकर के दिसंबर 2023 तक 3 क्वेश्चन पेपर जो है मैंने इन डेप्थ जो है इस चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए कवर किए हुए हैं। ठीक है, आप उसको जा करके वहां पे देखिए, आपको पता चलेगा कि किस इंटरेक्शन के साथ, किस लेवल ऑफ क्वालिटी के साथ हम लोगों ने वो क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व किया है। एक एक क्वेश्चन पेपर की 12 वीडियोस है, लेकिन वो उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन यू विल सी कि एक क्वेश्चन पेपर के ऊपर मैंने 12 वीडियोस डेडिकेट करी हुई है, उससे मतलब कम में मेरा क्वेश्चन पेपर ही नहीं खत्म होता है। ठीक है, तो आप वहां पे जाकर के देखिए कि आपको वहां पे चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही, फिर इट हेल्प्स यू और इट डजंट हेल्प यू। ठीक है, उसके बाद जो है मॉक टेस्ट होंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट जो है आपको 2 आवर लॉन्ग सेशंस मिलेंगे। इस टाइम पे मैं मॉक टेस्ट जो है वो दोबारा भी बनाऊंगी, बिकॉज अगर आप पिछले वाली साइकिल में देखिएगा, जो जून से लेकर के दिसंबर तक का टाइम पीरियड था, उसमें कुछ करंट अफेयर्स जो है काफी ऐड हुए। फॉर इंस्टेंस, विमेन रिजर्वेशन बिल हो जाएगा। ठीक है, फॉर इंस्टेंस एक नई जो है रिपोर्ट आई है जिसको बोलते हैं पाथ टू इक्वालिटी रिपोर्ट। ठीक है, यूएनडीपी और यूएन विमेन ने मिल करके जो है वो रिपोर्ट लॉन्च करी थी। इस बार उसका क्वेश्चन आया कि नहीं आया मुझे अभी देखना है, लेकिन अगर इस बार नहीं आया होगा तो अगली बार पक्का आ जाएगा। दैट इज अ न्यू रिपोर्ट, उसके अंदर नए इंडाइसेस लॉन्च हुए हैं। ठीक है, और यूएनडीपी ने और यूएन विमेन ने कोलैबोरेट करा है साथ में। ठीक है, तो इस तरह के करंट अफेयर्स जो है पिछली साइकिल में बहुत रहे, तो उनको मैं मॉक टेस्ट के अंदर जो है इनकलकेट कर दूंगी। ठीक है, और इस बार भी आई एम क्वाइट श्योर, बिकॉज इलेक्शंस भी आ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ बहुत सारी नई स्कीम्स आएंगी जो कि गवर्नमेंट लॉन्च करेगी, और हमें उनको इन डेप्थ कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो कहानी करंट अफेयर्स की होगी। ठीक है, लेकिन करंट अफेयर्स की आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो मॉक टेस्ट के थ्रू, और आपको ऐप के आपको गूगल के ऊपर या कहीं और जो है इस तरह के मॉक टेस्ट नहीं मिलेंगे जो आपके लिए बिल्कुल फ्रेश जो करंट अफेयर्स है उनकी प्रैक्टिस करवा दें। ठीक है, तो मॉक टेस्ट के अंदर हम लोग ये चीज करने की कोशिश करेंगे। करंट अफेयर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, बिना करंट अफेयर्स के अगर आपको स्टैटिक आता भी है तो उतना ज्यादा आपको हेल्प नहीं हो पाता है। ठीक है, आप अपने स्टैटिक को कैसे देख सकते हो कि आपको आता है कि नहीं आता, करंट अफेयर्स के थ्रू। अगर आपको करंट अफेयर्स समझ में आ रहे हैं तभी आप समझिए कि आपका जो स्टैटिक पोर्शन है आपने ढंग से कवर किया, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको स्टैटिक से आती है, और डायनामिक पार्ट कौन सा होता है, करंट अफेयर्स का। ठीक है,
तो करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग इन डेप्थ जो है वो लाइव क्लासेस के अंदर कवर करते हैं, ठीक है। और उनकी हम प्रैक्टिस किससे करते हैं, मॉक टेस्ट से, ठीक है। तो आपको 2 आवर लॉन्ग जो है 100 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट जो है वो आपको सब कुछ इस कोर्स के अंदर मिलेगा, ठीक है। और ये मैंने कवर कर लिया कि लाइव डाउट सेशंस आपको मिलेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप रहता है, ठीक है। उस टेलीग्राम ग्रुप को जब आप एक बार ज्वाइन करते हो तो आप डायरेक्टली मुझसे वहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो आपको, तो नॉट जस्ट ऑन कि भाई आप मुझसे सिर्फ मैसेज कर सकते हो, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। कॉल कर सकते हो। और इनफैक्ट कि पीएचडी एडमिशन्स को लेकर के बहुत सारे बच्चों के डाउट्स रहते हैं, वो मुझे हर तीसरे चौथे दिन जो है वो कॉल कर लेते हैं कि मैम इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। कि कोई टॉपिक जो है उसको कितना अच्छे से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, इंटरव्यू में जाकर के कैसे परफॉर्म करना है, कैसे नर्वस नहीं होना, कैसे एंशियस नहीं होना। बिकॉज आई जस्ट टोल्ड यू कि मेरा जेएनयू में एडमिशन हुआ था, तो मैंने भी एक काफ़ी डिफिकल्ट जो एडमिशन प्रोसेस होता है एंट्रेंस को और वाइवा को, वो वहाँ पे क्लियर किया था ओनली ऑन 2 सीट्स, ठीक है। तो वो गाइडेंस तो वो आपको साइड बाय साइड वहाँ पे मिल ही जाती है वंस यू गेट कनेक्टेड टू मी ऑन टेलीग्राम ग्रुप, या फिर क्योंकि मेरा नंबर वहाँ पे अवेलेबल रहता है तो आप मेरे को डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। एंड लास्टली कोर्स जो है वो आज की टेक्नोलॉजी के साथ जो है काफ़ी जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप इसको अपने कन्वीनियंस के ऊपर आप मोबाइल में देखना हो कि लैपटॉप में देखना हो कि टीवी पे देखना हो, अगर यूट्यूब से देख रहे हो तो, ठीक है। तो वो आप अपनी कन्वीनियंस के ऊपर सब कुछ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई आपको कोई जाकर के कोई फिजिकल क्लास लगानी है, ठीक है, जिसमें आपका ट्रैवलिंग टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है, आपको पैसे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। आपको उनके टाइम के हिसाब से जो है वर्क करना पड़ता है। तो ऑनलाइन का ये फ़ायदा होता है कि आपकी कन्वीनियंस के ऊपर चीज़ें होती हैं, ठीक है जी। तो और एक ऑब्वियसली एक इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि ऐसा मत समझिएगा कि अगर आप ये कोर्स नहीं ले रहे हो तो आपका एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर हाँ, गिवन कि विमेन स्टडीज़ के अंदर मटेरियल की कितनी डर्थ है, ठीक है, गाइडेंस की कितनी डर्थ है, आपको नहीं मिल रहा है इसका कंटेंट जो है वो कहीं पर भी, सो आई हाईली सजेस्ट यू कि आप ये कोर्स ले सकते हो और इट विल ओनली हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन एक ऐसे एग्ज़ाम को लेकर के जहाँ पे जेआरएफ कितनी कम सीट्स रहती हैं, जहाँ पे नेट कितनी कम सीट्स रहती हैं, ओके। सो ऑन दैट नोट, अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर के ऊपर जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आई सजेस्ट यू कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप जल्दी से जल्दी कर लो, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी जनवरी, ठीक है, और 3-4 महीने में एग्ज़ाम हो ही जाएगा। तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा आप जितना जल्दी जो है उसको कर लेते हो, ओके। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।